Hello everyone, welcome back. So till now we have completed chapter 1. Now we will start with chapter 2, inverse trigonometric functions. So आपने 11th क्लास में trigonometric functions पढ़े होंगे, साइन, कोसाइन, टेन, कोट, सीकेंट, कोसिकेंट, इन सब के बारे में आपने पढ़ा होगा. अच्छा, तो साइन फंक्शन आपको सबसे पहले इंट्रोड्यूस कहाँ किया गया था? साइन एंड कोसाइन. पहले हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में एक ब्रीफ में जान लेते हैं, उसके बाद हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे. इनवर्स फंक्शंस हम पढ़ चुके हैं क्या होते हैं, ठीक है. और इनवर्स फंक्शंस कब एग्जिस्ट करते हैं ये भी हम पढ़ चुके हैं कि कब एग्जिस्ट करेंगे. बाइजेक्टिव फंक्शन होना चाहिए. ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में हम एक बार ब्रीफ में फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि क्या होते हैं. फिर हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में जानेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का इनवर्स कैसे निकालेंगे, ठीक है. सबसे पहले हम बात करते हैं साइन फंक्शन की, ठीक है. आपने इनके बारे में पढ़ा होगा जब आपने राइट एंगल ट्राइंगल्स के बारे में पढ़ा होगा, ठीक है. एक जगह 90 डिग्री एंगल होता है, ये हमारा एंगल थीटा होता है. तो हमारा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज इज व्हाट गिव अस साइन थीटा, राइट. एंड कोस इज बेस बाय हाइपोटेन्यूज इज cos theta. This is what you have learned from your 8th, 9th onward, right? Then you are also introduced with how you change Cartesian product into complex. Also you have studied, where you study that you can write, suppose this is a point in Cartesian product, Cartesian plane. So this is our x-axis, like this, right? This distance is x, this distance is y, and this point is x comma y. What we'll do, we'll join this point. This is the vector, okay, position vector of this point, right? And what is the magnitude of this vector? Magnitude of this vector is given by x square plus y square. This is what you will study in vectors, right? This is the angle theta, ठीक है. You can write x is equals to r cos theta. This आपने ये फिजिक्स में भी पढ़ा होगा इसके बारे में. एंड y is equals to r sin theta. और हम यहाँ कैसे पहुंचे? हम यहाँ ऐसे पहुंचे, हमने ये ट्राइंगल यूज किया है, ये वाला ट्राइंगल हमने यूज किया. दिस इज 90 डिग्री, दिस इज थीटा. सो परपेंडिकुलर बाय hypotenuse, that is r, which is the magnitude of this vector, is equals to sin theta. So y is equals to r sin theta. And similarly base by hypotenuse is cos theta, so it is x is equals to r cos theta. So to change planar coordinate, that is xy plane, to polar coordinate, a different coordinate system, right? Now sine functions and cos function ये introduce क्यों किए गए? And till now I assume that you are well aware about functions. What are functions, right? Functions are like a machine which operates on given inputs. Machine which operates on given inputs and give an output. The output is called the image. The input is called the pre-image. And for every input there should be an output, right? For every element of the domain there should be an element in the codomain, right? Unique element. So this is function. Now what was I was discussing about when and why this sine and cos functions are introduced. So in physics also you have studied about waves, right?
we observe in our environment, in our surroundings, that certain particles or certain like sound wave और आर मतलब जब हम किसी पानी में पत्थर फेंकते हैं तो द वेव्स दे फॉलो अ पीरियोडिक path, that is they repeat after some times. ऐसे गया, then again repeat. So उन सब को समझने के लिए, उन सब को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने पीरियोडिक फंक्शंस साइन कोस टेन इन सब का इंट्रोडक्शन किया. ओके, नाउ स्पेसिफिकली लेट अस study about sin theta. Right, theta is generally we take in radians, right? This can vary over complete hour. ठीक है, यहाँ पे हम सारे रियल पर ही फंक्शंस की बात करेंगे. फिर हम कॉम्प्लेक्स में भी बात कर सकते हैं, बट टिल नाउ वी आर स्टडिंग अबाउट फंक्शंस ऑन रियल नंबर्स. ठीक है, तो यहाँ पे थीटा हमारा पूरा आर पे वेरी कर सकता है, लेकिन साइन थीटा की जो इमेज होती है वो हमेशा किसके बीच में आती है? -1 एंड 1 के बीच में. क्या -1 एंड 1 अटेन होते हैं? हाँ, होते हैं. तो दिस इज द रेंज ऑफ साइन थीटा. ठीक है, सो व्हाट इज द डोमेन? कंप्लीट आर. व्हाट इज द रेंज? -1 to 1. ओके, व्हाट इज द ग्राफ? So you must have learned sin 0 is 0, sin pi by 2 is 1, sin pi is 0, sin 3 pi by 2 is -1, and sin 2 pi is 0. Right? Okay, so can I join it like this? We can, right? But do we? No. For the sine function, let us calculate some values in between these points. Okay, what is the value for sine pi by 4? It's 1 upon √2, right? Around 0.7, right? Like this. Okay, now what is the value for 3 pi by 4? That is around, so it's 2 pi, sorry, it's pi minus pi by 4, right? So sin pi minus pi by 4 is sin pi by 4 positive, the same value. So this one, okay, so now let's try to connect the dots. Okay, similarly we'll go downwards. Okay, so this is the graph for the sine, and similarly we can produce it on the negative side like this. Okay, and we observe that after this point this will again go like this. So can you see that this pattern is repeated? Okay, so sin pi, साइन का ग्राफ हमारा ऐसा होता है. ओके, and it is 2 pi periodic. After 2 pi it will repeat its values, that is function का value at x is equals to function का value at x plus 2 pi. And I know you must have used it many a time that अगर 2 pi plus में है तो सेम वैल्यूज देंगे थीटा पे. ठीक है, 2 पाई पीरियोडिक बोलते हैं. पीरियड क्या होता है? हम एक पॉजिटिव नंबर को पीरियड तब बोलते हैं जब फंक्शन उस पॉइंट के बाद अपनी वैल्यू रिपीट कर रहा हो. फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, राइट?
Okay. The next point is the sine function is, can you see, while we are going on the negative side, we are going downwards. So what we are doing, हमने इसका रिफ्लेक्शन किया y axis, treat y axis as a mirror, और हमने इसका रिफ्लेक्शन किया around y axis, then we'll get something like this, right? And then what we do, we again rotate it 90 degrees, 180 degrees. So what we'll get the graph on the negative side. So is it even or odd function? Have you studied about odd and even functions? I don't think so. Let me introduce. A function is said to be even function if f of minus x is equals to f of x for all x belongs to the domain of the function. Let me write here r only, okay? डोमेन पे हम ये डिफाइन करेंगे. अगर फंक्शन में आप x की जगह माइनस एक्स रख दें तो भी वैल्यू में कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो हम उस फंक्शन को क्या बोलते हैं? दिस टाइप ऑफ फंक्शंस आर कॉल्ड इवन फंक्शंस. अगर हम फंक्शन में माइनस एक्स रखें x की जगह और हमारी वैल्यू जो है माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स आ जाए फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, then we call these type of functions as odd functions. ठीक है? And how are we going to use further? You will study about these in higher standards, that every function can be written as the sum of even and odd function, right? And for like this we can produce different functions using different even and odd functions, right? ओके तो यहाँ पे हम क्या बात कर रहे थे कि साइन हमारा इवन फंक्शन है या ओड फंक्शन है. तो यू मस्ट हैव सीन दैट साइन ऑफ माइनस एक्स क्या आता है? माइनस ऑफ साइन एक्स आता है. ठीक है, तो हम यहाँ पे साइन में एक्स की जगह जब हम माइनस एक्स रख रहे हैं तो इट इज गिविंग माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स, राइट? सो इट इज एन ओड फंक्शन. द साइन इज एन ओड फंक्शन. ठीक है, तो यहाँ पे ओरिजिन के अबाउट रोटेशन होता है. ठीक है, सो दीज आर द थिंग्स. आपको ग्राफ समझ आना चाहिए क्या हो रहा है, आपको डोमेन, रेंज एंड सम प्रॉपर्टीज ऑफ द फंक्शन. 2π पीरियोडिक है. ठीक है, उसके बाद एक चीज और, जब आप देखोगे जैसे मैंने ये ग्राफ है साइन का, ठीक है, आई ड्रॉ अ लाइन parallel to x-axis. So this is the line. Y is equals to some constant a, right? So wherever the function cut this line, so do you agree that that is the point where the function gives the value a? ठीक है, so if a function cut this line, this implies that a belongs to the range of that function, range of the function f, right? तो अगर हमें ये चेक करना है ग्राफिकली कि वो पॉइंट उस फंक्शन की रेंज में जा रहा है या नहीं जा रहा है, तो व्हाट विल डू, we will make an horizontal line parallel to x-axis and we'll see whether the function graph of the function cut that line or not. ठीक है, if it cuts, this implies that the point belongs to the range of the function. ठीक है, वो फंक्शन जो है वो वैल्यू ले रहा है किसी ना किसी पॉइंट पे डोमेन के. ठीक है, अब यहां से तो हमने एक बार कट किया तो हम ये तो हो गए अश्योर कि वो फंक्शन जो है वो वैल्यू ले रहा है, लेकिन कितनी बार ले रहा है? जितनी बार कट करेगा उतनी बार ले रहा है. तो अगर मैं यहाँ पे कोई पैरेलल लाइन ड्रॉ करूं, ठीक है, y इज इक्वल्स टू हाफ मैंने ड्रॉ की, तो आप बताइए कि साइन का जो ग्राफ है वो इसको कितनी बार कट करेगा? इनफाइनाइट टाइम्स कट करेगा. तो मतलब ये 1/2 वैल्यूज इनफाइनाइट टाइम्स ले रहा है.
ठीक है। ऐसे ही अगर हम -1 से लेके 1 के बीच में कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएंगे, मतलब y इज इक्वल्स टू सी टाइप, तो हमारी सारी लाइंस को साइन का ग्राफ जो होगा वो इनफाइनाइट टाइम्स कट करेगा। ठीक है, अब इसको हम किस चीज से रिलेट कर सकते हैं, जरा सोचिए। अब हमने क्या पढ़ा था, 1-1नेस। ठीक है, 1-1 क्या बोलता है कि एक को इस पे मैप किया, अगर कोई हम इससे डिफरेंट एलिमेंट ला रहे हैं तो उसको किसी डिफरेंट पे मैप करना चाहिए। किसी दो एलिमेंट्स की सेम इमेज नहीं हो सकती। तो अगर ऐसा हो रहा है कि ये हॉरिजॉन्टल लाइन को हमारा जो ग्राफ है फंक्शन का वो एक से ज्यादा बार कट कर रहा है, तो वो क्या 1-1 हो सकता है? नहीं हो सकता है, क्योंकि जितनी बार कट करेगा मतलब उतने डोमेन में एलिमेंट हैं, ठीक है, जो वो वैल्यू ले रहे हैं। देखो, अगर यहाँ पे ही घूम घूम के वापस आ रहा है तो सेम, जैसे अगर मैं ये बनाऊं तो ये कट किया, यहीं पे घूम के वापस आ रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, डिफरेंट है ना, ये तो रियल लाइन पे आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करो तो ये और ये नंबर तो डिस्टिंक्ट है ना, तो हम क्या बोल रहे हैं, दो डिस्टिंक्ट की सेम इमेज आ रही है। तो अगर हम इन जनरल डोमेन आर लें तो क्या साइन फंक्शन 1-1 है? नो, इट इज नॉट 1-1। ओके, तो इनवर्स की बात कैसे करेंगे आगे देखेंगे, ठीक है। उसके बाद ऑन टू नेस की अगर हम बात करें, क्योंकि इनवर्स फंक्शन होने के लिए तो बाइजेक्टिव होना चाहिए ना, तो हमें ऑन टू भी चाहिए। तो क्या साइन ऑन टू है? ऑन टू हम बना सकते हैं ना, कैसे बनाएंगे? सिर्फ हम उसकी रेंज से डिफाइन कर देंगे, ठीक है। अगर हम सिर्फ -1 और 1 की बात करें तो द फंक्शन इज ऑन टू, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे लिख दूं कि मैंने r से लेके r पे साइन फंक्शन डिफाइन किया है, तो इज इट ऑन टू? नो। ओके, तो अब ये बताइए कि ग्राफ से ऑन टू नेस कैसे देखेंगे। देखो, अगर हमें ऑन टू दिखाना है, ठीक है, तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है कोडोमेन, वो क्या बननी चाहिए? रेंज बननी चाहिए। तो कोडोमेन हमारी रेंज बननी चाहिए। तो कोडोमेन में जो भी एलिमेंट आ रहा है, जैसे हमने मान लिया यहाँ पे हमने r लिया है, हम अगर r प्लस भी ले लें, मतलब पॉजिटिव एलिमेंट्स है हमारी कोडोमेन, तो r प्लस में 2 आ रहा है, ठीक है। y इज इक्वल्स टू 2 हम लाइन बनाएंगे, तो अगर ग्राफ उसको कट कर रहा है तो इसका मतलब क्या है कि 2 वैल्यू ले रहा है ग्राफ, ठीक है, किसी पॉइंट पे 2 वैल्यू आ रही है, ठीक है। तो ऐसे ही r प्लस के हर एलिमेंट के लिए जब भी हम लाइन बनाएंगे, r प्लस के किसी भी एलिमेंट के लिए अगर आप लाइन बनाओगे तो वो हमारी फंक्शन के ग्राफ को कट करनी ही चाहिए किसी एक पॉइंट पे। तो ज्यादा पॉइंट पे करें नो प्रॉब्लम, क्योंकि हमें तो ऑन टू नेस देखनी है ना, वो उसकी प्री इमेज एग्जिस्ट करनी चाहिए बस, ठीक है। कट करते ही प्री इमेज एग्जिस्ट कर जाएगी तो हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, ऑन टू हो जाएगा। अच्छा, ये बात ध्यान रखिएगा कि आपको कोडोमेन में जो एलिमेंट्स हैं उन्हीं के रिस्पेक्ट में ये चीज चेक करनी है। आप कोडोमेन से बाहर जाके अगर आप बोलें कि हमने ये पैरेलल लाइन बनाई थी लेकिन वो एलिमेंट हमारा कोडोमेन में ही नहीं आ रहा है, तो हम कैसे बात करेंगे, ठीक है। तो कोडोमेन के हर एक एलिमेंट के लिए जो हम ये पैरेलल लाइन बनाए तो वो फंक्शन के ग्राफ को कट करनी चाहिए, तो हम बोलेंगे कि फंक्शन ऑन टू है, ठीक है। तो अब हम इसको थोड़ा समराइज कर देते हैं। अब जल्दी जल्दी ये बताइए कि साइन फंक्शन की डोमेन क्या है। पूरी आर ले सकते हैं, किसी भी पॉइंट पे क्या दिक्कत है उसको, आप कोई भी पॉइंट दीजिए, साइन की वैल्यू आप उस पर निकाल सकते हैं। आप मैन्युअली नहीं निकाल सकते बट कैलकुलेटर तो देगा, ठीक है। ओके, साइन की डोमेन क्या हो गई हमारी, आर। ओके, रेंज क्या हो गई, -1 to 1,
क्लोज्ड इंटरवल। ठीक है, ग्राफ हमारा हो गया ऐसे करके। ठीक है, और पीरियड हमारा हो गया 2 पाई। 2 पाई के बाद हमारी वैल्यूज क्या हो जाएंगी, रिपीट हो जाएंगी। क्या कैसा फंक्शन है, ओड है कि इवन है? इट इज एन ओड फंक्शन, राइट? क्या 1 1 है? 1 1 नहीं है। अगर मैं फंक्शन R टू R डिफाइन करके चल रही हूं तो क्या मेरा फंक्शन ऑन टू है? नहीं है, ऑन टू भी नहीं है। ठीक है, ओके। नाउ सिमिलरली यू कैन थिंक अबाउट कोस फंक्शन। अगर आप कोस देखोगे तो इसका भी डोमेन R हो जाएगा। पूरे R पे आप किसी भी पॉइंट पे इसकी वैल्यू निकाल सकते हो। इसकी रेंज क्या होगी? इसकी रेंज भी -1 to 1 हो जाएगी। वैल्यू इससे बाहर नहीं जाएगी कोस की भी। ठीक है, ग्राफ की अगर हम बात करें तो आप पॉइंट्स निकाल के देख सकते हैं कि इसका ग्राफ ऐसा बनता है। 0 पे वैल्यू 1 हो जाएगी, ठीक है, 0 पे वैल्यू 1 हो जाएगी। उसके बाद हमारी π/2 पे 0 हो जाएगी। उसके बाद हमारी पाई पे -1 हो जाएगी। ठीक है, ऐसे करके हम इसका ग्राफ देख सकते हैं। तो आप इसकी ग्राफ को नोटिस कीजिए, ये भी 1 1 नहीं है क्योंकि आप पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये इनफाइनाइट पॉइंट्स पे कट करेगा, तो ये भी 1 1 नहीं है। ठीक है, ऑन टू है क्या? ऑन टू भी नहीं है। फंक्शन मैं R टू R ही डिफाइन करके चल रही हूँ। ठीक है, उसके बाद अगर हम यहाँ पे देखें तो क्या ये इवन फंक्शन है या ओड फंक्शन है? तो हमने पढ़ा कि कोस जब -x आता है तो माइनस को खा जाता है। ठीक है, कोस x वैल्यू देता है, सेम वैल्यू देगा, तो ये हमारा कैसा होता है? इवन फंक्शन होता है। इवन फंक्शन को ग्राफिकली कैसे देखेंगे? इवन फंक्शन जो होता है हमारा y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अगर मैं मिरर रखूं तो यही ग्राफ सिमिलरली हमारा मिरर में रिफ्लेक्ट होके दिख रहा है। ठीक है, तो इवन फंक्शंस आर सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस। सिमेट्री के बारे में तो पता है ना, मिरर इमेज दिख रही है उसकी। उसके बाद कोस फंक्शन भी हमारा 2 पाई पीरियोडिक होता है। ठीक है, 2 पाई पीरियोडिक। देखिए यहाँ से यहाँ गए हम और यही फिर से रिपीट होगा। ठीक है, 2 पाई पीरियोडिक ऐसे देख सकते हो, या 2 पाई पीरियोडिक आप कैसे देख सकते हो? यहाँ से शुरू करेंगे तो यहाँ से यहाँ गए, फिर से रिपीट होगा, यहाँ से यहाँ गए। तो 2 पाई पीरियोडिसिटी आप कैसे भी देख सकते हो, यानी 2 पाई के बाद बेसिकली उसकी वैल्यूज रिपीट होंगी। अच्छा, साइन और कोस को हमने सर्कल से भी रिलेट करके पढ़ा है, क्योंकि जब हम ट्रिग्नोमेट्री हमने रिलेट की थी राइट एंगल ट्राइंगल से, तो वहां पे तो ये एंगल हमेशा एक्यूट होता था, राइट? लेकिन हम साइन और कोस तो वैल्यूज मोर देन 90 के लिए भी डिफाइन करते हैं, राइट? तो उनके लिए कैसे डिफाइन किया हमने? सर्कल्स का यूज किया। ठीक है, सर्कल हम बनाते हैं 1 रेडियस का अबाउट ओरिजिन। ठीक है, और यहाँ से जब हम चलते हैं, ये जो सर्कल कंप्लीट होता है, यहाँ पे ये एक 2 पाई सर्कमफ्रेंस, राइट? एक 1 रेडियस का सर्कल बनाया तो उसकी सर्कमफ्रेंस क्या होगी? 2 पाई, राइट? तो हमने एक 2 पाई लेंथ कवर कर ली होती है। उसके बाद फिर से हमारी वैल्यूज रिपीट होनी शुरू हो जाती है। तो साइन और कोस दोनों फंक्शंस हमारे सर्कल को भी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है ना? ओके, दिस पॉइंट ऑन द सर्कल विद रेडियस थीटा कैसे निकालेंगे? And this will correspond to a value on x-axis which will be between -1 and 1. ठीक है, so this will give the value for sine and cos. ठीक है,
तो ऐसे करके हम आगे बढ़ते हैं, ये आप पढ़ सकते हैं खुद से। ओके, so this will complete sine and cos. Now let's move on to tan theta. So how will we define tan theta? tan theta को हम डिफाइन करते हैं sin by cos, ठीक है। अच्छा भाई, तो इसमें क्या जहाँ पे cos 0 हो वहाँ पे हम tan डिफाइन कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे ना, क्योंकि समथिंग बाय 0 इज नॉट डिफाइंड, राइट, विल गो टू इन्फिनिटी। ओके, सो यहाँ पे हमारे पास डिसकॉन्टिन्यूटी आती है, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। कॉन्टिन्यूस नहीं होगा, ठीक है। और इसकी रेंज भी हमारी कंप्लीट आर हो जाती है। ग्राफ कैसे बनता है? tan 0 क्या होता है? 0 होता है। tan पाई बाई 2 क्या होता है? इन्फिनिटी। एंड tan माइनस पाई बाई 2 इज माइनस इन्फिनिटी। सो ये जो होते हैं ये हमारे इसमें एसिम्पटोट हो जाते हैं। दीज आर द पॉइंट्स जहाँ पे हमारा फंक्शन जो है वो इन्फिनिटी की तरफ जा रहा होता है, पाई बाई 2 एंड माइनस पाई बाई 2, ठीक है। ऐसे ही करके हम 2n+1 इंटू पाई बाई 2 जो पॉइंट्स होते हैं वो माइनस कर देते हैं आर से, तो ये हमारी डोमेन बन जाती है, ठीक है। कोट और सीकेंट और कोसिकेंट के बारे में भी आप ऐसे ही पढ़ सकते हैं। द मेन 3 फंक्शंस होते हैं हमारे, साइन, कोस एंड टेन, उनके अपोजिट करेंगे रेसिप्रोकल, तो हमारे पास कोट, सीकेंट और कोसिकेंट बन जाता है, ठीक है। रेसिप्रोकल में और इनवर्स फंक्शन में डिफरेंस है, ठीक है ना। साइन x का इनवर्स इज साइन 1/sin x which is cosecant x, but sin inverse x is different. Okay, we'll learn about this, ठीक है। Okay, one more thing is that zeros कहाँ होती हैं साइन, कोस और टेन की? तो जहां पे ये एक्स एक्सिस को कट कर रहे हैं ग्राफ्स, दीज आर द पॉइंट्स ऑफ जीरोस ऑफ साइन, कोस एंड टेन। तो साइन कहाँ कट करेगा? हमारा n पाई पॉइंट्स पे कट करेगा, और कोस हमारा 2n+1 पाई बाई 2 पॉइंट्स पे कट करता है हमारी एक्स एक्सिस को, तो उसकी जीरोस वो हो जाती हैं। टेन की जीरोस साइन वाली ही होती हैं, n पाई पे कट करता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें, ये जो फॉर्मूलाज हैं, साइन एक्स इज इक्वल्स टू साइन वाई अगर हमें दे रखा है तो हम x को क्या लिखेंगे? x इज इक्वल्स टू n पाई प्लस -1 रेज़ टू पावर n इंटू वाई। सिमिलरली कोस x इज इक्वल्स टू कोस y अगर हमारे पास आ जाता है तो हम x को लिखेंगे 2n पाई प्लस -y। क्योंकि ये यहाँ पे ऐसा क्यों आया? क्योंकि कोस जो है वो 2n, ठीक है, 2 पाई के बाद क्या होगा? वैल्यू रिपीट करेगा, तो कोस x कोस y के इक्वल है। हम ये नहीं बोल सकते कि x y के इक्वल है, 1 थोड़ी है फंक्शन हमारा, ठीक है। तो उसके लिए 2 पाई पीरियोडिसिटी हो सकती है ना, कि ऐसा हो सकता है कि हमारा ऐसा आया हो, ठीक है। तो कोस पहले हमारा x पॉइंट ये हो और y पॉइंट ये हो, दोनों पे हमारी y पॉइंट हमारा ये हो, दोनों पे हमारी वैल्यूज क्या आ रही है? सेम आ रही है, ठीक है। बट x और y तो डिफरेंट है, तो x और y में क्या रिलेशन है? वो एक दूसरे से 2n पाई मल्टीपल ऑफ 2 पाई के डिफरेंस पे होंगी, ठीक है, प्लस या माइनस। इसलिए हम ये फॉर्मूला बनाया हमने इन जनरली लिखने के लिए, ठीक है। ऐसे ही साइन एक्स के बारे में आप देख सकते हो, और ऐसे ही आप टेन एक्स के बारे में भी देख सकते हो। ओके, सो इन दिस वीडियो आई थिंक यहीं तक हो पाएगा। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हम नेक्स्ट वीडियो में शुरू करते हैं। गुड बाय।